Welcome to Key2 Pharmacology. I'm Dr. Sahej Zafar, and those who are new here, I'm an Associate Professor of Pharmacology at CMS Lahore Medical College. Migraine is a very important exam topic, and also it is very important clinically. There's a huge population which experiences the attacks of migraine every day, and the treatment as well as the prophylaxis, both of them are extremely important clinically as well as with reference to the exam questions. Do not skip this video if you want to know the answers to all these questions. Migraine hoti kya hai? It's a kind of headache, a severe unilateral pulsating headache. Throbbing headache hoti hai. It can be bilateral, but most of the time it is unilateral. एक साइड पे होती है, एक साइड का सर का दर्द होता है. जनरली लेमैन पॉपुलेशन को भी इसके बारे में पता होता है कि आधे सर का दर्द इसको कहा जाता है. में कंपनीड सिम्टम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल नोजिया, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया. पेशेंट जो है वो सुवेयर हेडेक के साथ प्रेजेंट करता है. लाइट की सेंसिटिविटी, साउंड की सेंसिटिविटी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही होती हैं, और साथ वॉमिटिंग. इट इज़ अ वेरी टिपिकल फीचर ऑफ सुवेयर माइग्रेन. स्टार्ट हो जाए अगर एक दफ़ा तो फ्यू आवर्स में भी सबसाइड कर सकती है, एंड इट मे टेक अप टू डेज टू सबसाइड. जनरली इट इज सीन टू बी मोर कॉमन इन women, and it also has a very strong genetic component. Now, why is it common in women? We will be looking at certain risk factors. Migraine की कुछ types होती हैं. Can either be without aura, which is 85% of the population commonly, or it can be with aura. जो क्लासिक मिग्रेन के सिम्टम्स डिस्क्राइब किए जाते हैं, वो कहा जाता है कि देयर इज अ प्रोड्रोमल फेज जिसको हम ऑरा कहते हैं. नाउ व्हाट इज ऑरा? ऑरा एक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हैं जो विजुअल हो सकते हैं, सेंसरी हो सकते हैं, कोई स्पीच मोटर डिस्टर्बेंस हो सकती हैं. इन लेमैन टर्म हम ये कह सकते हैं कि एक सिक्स सेंस होती है. एक पेशेंट को कुछ ऐसे फील होता है कि अब वो वाले स्पेसिफिक सिम्टम्स आए हैं तो पेशेंट कैन परसीव कि अब मेरा मिग्रेन का अटैक स्टार्ट होने लगा है. ऑरा जनरली starts 20 to 40 minutes before the headache. तो ये क्लासिक मिग्रेन के साथ डिस्क्राइब किया जाता है कि पेशेंट्स ऑफन एक्सपीरियंस ऑरा. इट कैन बी अ विजुअल सिम्टम, कुछ ऐसा हैलोज हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो पेशेंट को फील होती हो. इट कैन बी समथिंग सेंसरी, इट कैन बी समथिंग ऑडिटरी. कोई भी सिम्टम ऐसा हो सकता है विच मेक्स द पेशेंट फील कि इसके बाद मेरा अटैक स्टार्ट हो जाना है. बट रिमेंबर, दिस इज ओनली इन 15% ऑफ द केसेस. 85% में ऑरा नहीं होता. नाउ व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? अब रिस्क फैक्टर्स को अगर हम देखें, व्हाई डू वी फोकस ऑन द रिस्क फैक्टर्स इन मिग्रेन? क्योंकि हमारे पास कोई इटियोलॉजी नहीं है, हमारे पास कोई स्पेसिफिक कॉज, पैथोलॉजिकल कॉज नहीं अभी तक आइडेंटिफाई हो सकी विच कॉजेज मिग्रेन. So we are focused on the risk factors so that we can minimize the risk factors, and as a result we can minimize the chances of a migraine attack. Depression, anxiety, stress, increased body weight, high blood pressure, hypercholesterolemia, lack of sleep, skipping meals, fatigue, ये common चीज़ें हैं जो trigger करती हैं migraine के attack को. And now, while seeing at the risk factors, we can identify that most of them are more prevalent in women. Fatigue भी ज़्यादा होती है, skipping meals, lack of sleep, anxiety, depression, all of these are more related to females as compared to males, and as a result migraine is more commonly diagnosed in females. Looking at the pathogenesis of migraine, एक हमारे पास vascular theory है, एक हमारे पास neurogenic theory है. The vascular theory states that there is initial vasoconstriction which produces cerebral ischemia that starts the attack. Focus on the word initial vasoconstriction. Start में सिर्फ कहते हैं कि vasoconstriction होती है जिसकी वजह से अटैक ट्रिगर होता है. Now this is not proven. ये supposed है. Theories हम तब present करते हैं again when we do not have a fixed factual etiology. Proposed theory है, one of them is vascular theory. The other one is neurogenic theory. Neurogenic theory कहती है कि there is spreading of cortical activity followed by a vascular phenomena. न्यूरोजेनिक कहती है कि कुछ ऐसी इम्पल्सेस ट्रांसमिट होती हैं जो कि वैस्कुलर फिनोमेना को ट्रिगर करती हैं. वैस्कुलर थ्योरी कहती है कि देयर इज इनिशियल वेसोकंस्ट्रक्शन व्हिच देन ट्रिगर्स द अटैक. आइदर वे, व्हिच वी आर नॉट श्योर व्हिच वे इट इज, बट आइदर वे ट्राइजेमिनल नर्व डिस्ट्रीब्यूशन जो है इंट्राक्रैनियल आर्टरीज की, वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होती है. मे बी सब एक्स्ट्राक्रैनियल आर्टरीज आर ऑल्सो इन्वॉल्व्ड. और होता क्या है कि वट एवर इज द रीज़न, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है. रिएक्शन हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है? देयर इज रिलीज ऑफ सर्टन मीडिएटर्स लाइक कैल्सिटोनिन जीन रिलेटेड पेप्टाइड जिसे हम CGRP कहते हैं, और देयर इज सब्सटेंस P, और देयर इज न्यूरोकाइनिन A. ऑल ऑफ दीज आर वेजोडाइलेटरी पेप्टाइड्स. दे कॉज वेजोडाइलेशन.
Remember, at the start we said with the vascular theory, there is initial vasoconstriction, but the response, the reaction that our body produces is release of a burst of mediators which are all vasodilators. So there is vasodilation. जब vasodilation होती है, capillary permeability increase कर जाती है, there is extravasation of plasma and plasma proteins into the perivascular space, जिसकी वजह से मैकेनिकल स्ट्रेचिंग होती है और हमारी जो meninges हैं वो स्ट्रेच करती हैं and that causes the pain. जो severe पेन है वो बेसिकली meningeal स्ट्रेचिंग की वजह से होती है, बिकॉज वी ऑल नो कि ब्रेन के अंदर तो कोई पेन रिसेप्टर्स नहीं है, बट द स्पेस इज कंजेस्टेड. हमारा स्कल एक फिक्स्ड बोनी कैविटी आपकी है और उसके अंदर आपका ब्रेन है विच इज़ ऑक्यूपाइंग मोस्ट ऑफ दिस कैविटी, उसमें कोई फ्री स्पेस तो है नहीं है. एंड व्हेन देयर इज एक्सट्राविजेशन ऑफ प्लाज्मा एंड देयर इज स्ट्रेचिंग ऑफ द meninges, दैट कॉजेज pain because of stimulation of the pain receptors which are present in the meninges. Coming to the drug therapy of migraine, we can either go for a non-specific treatment which is mainly symptomatic management of pain. That includes paracetamol, जो mild है. Then we can go to NSAIDs which are commonly called painkillers. And then it is very important to add antiemetics like metoclopramide and domperidone to the regime, because जब तक पेशेंट की वॉमिटिंग सबसाइड नहीं करेगी तब तक वो कोई और जो मर्जी ड्रग लेता रहेगा वो ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगी और अपना एक्शन नहीं प्रोड्यूस कर सकेगी. सो एडिंग एन एंटीएमेटिक इज कंपल्सरी टू दी एक्यूट अटैक मैनेजमेंट ऑफ मिग्रेन. अगर बहुत सिवियर मिग्रेन हो और वो पेन किलर्स के साथ भी कंट्रोल नहीं हो रही, वी माइट हैव टू शिफ्ट टू दी ओपियोइड एनाल्जेसिक्स एज वेल. स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मिग्रेन का क्या है? सेरोटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट्स. 5-HT1D वो स्पेसिफिक सब टाइप ऑफ रिसेप्टर है जिसके एगोनिस्ट यूज करते हैं हम, विच आर कॉल्ड ट्रिप्टन्स. देयर वाज आल्सो एन ऑप्शन ऑफ ergot derivatives like ergotamine or dihydroergotamine, but the ergot alkaloids have a lot of side effects which we will be discussing in the coming lectures. तो ergot alkaloids now are practically obsolete जब से ट्रिप्टन्स डिस्कवर हुए हैं, because they are relatively safe as compared to the ergots. Let's focus on the detail of serotonin agonist. 5-HT1D, 1B receptor agonists, which are commonly called triptans. Why? Just because of the name, because all of them sound same. In short form, we call them triptans. ये एक्सक्लूसिवली मिग्रेन के ही ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं, अदरवाइज बहुत ज़्यादा इनका यूज़ नहीं है. दे कैन बी यूज इन क्लस्टर हेडेक और सिमिलर सिम्टम्स, लेकिन उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम द हेडेक्स इनका कोई खास क्लिनिकल यूज़ नहीं है. These are agonist of the serotonin receptors. So they activate the 5-HT1D, 1B receptors on the presynaptic trigeminal nerve endings and they inhibit the release of the vasodilating peptides. दिस इज़ वन ऑफ द मैकेनिज्म. एक तो वो प्रीसाइनेप्टिकली एक्ट करेंगे, जो ट्रिगर है उसको प्रिवेंट करेंगे और वेजोडाइलेटरी सब्सटेंसेस की रिलीज को प्रिवेंट करेंगे. सेकेंडली, बाय डायरेक्टली एक्टिंग एज अ वेजोकंस्ट्रिक्टर, बिकॉज ये सेरोटोनिन एगोनिस्ट हैं, सेरोटोनिन बाय इटसेल्फ इज अ वेजोकंस्ट्रिक्टर, because they prevent the vasodilation and stretching of the pain endings. ये vasoconstriction एक तो vasodilatory substances को बनने नहीं देंगे, secondary ये vasodilation को भी prevent करेंगे, vasoconstriction cause करेंगे, extravasation of fluid नहीं होगी और meningeal stretching नहीं होगी. Triptans में somatriptan is a drug of choice for aborting the acute attack of migraine. It would be safe to say that triptans by now are the drug of choice to relieve the acute attack of migraine. ये वॉमिटिंग को भी सप्रेस करते हैं, बिकॉज न्यूरोकाइनिन ए को ये इनहिबिट कर रहा होता है, उसके रिलीज को इनहिबिट कर रहा होता है. ये कुछ जो मीडिएटर्स रिलीज होते हैं ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को भी स्टिमुलेट कर रहे होते हैं. सो दिस इज़ एन एडिशनल एडवांटेज. इट इज़ शॉर्ट एक्टिंग, ये इसका एक साइड इफेक्ट है. इसकी बायोअवेलेबिलिटी भी कम है, उसकी वजह से आपको डोज ज़्यादा देनी पड़ती है. यू हैव टू गिव high dose at frequent intervals, which can be a cause of adverse effects. So this is one side effect that is related to triptans. Frovatriptan is the longest acting amongst the triptans and rizatriptan is the fastest acting. That means it has the shortest onset of action. अब इनके side effects क्या हैं? Serotonin हमने last lecture में discuss किया था. It is a vasoconstrictor. Endothelium intact हो तो there is coronary vasodilation. But in patients जिनमें coronary डैमेज है, एंडोथेलियल डैमेज है, वहाँ पे ये बहुत सुवेयर एक चीज़ बन सकती है कि इट विल कॉज टाइटनेस इन हेड एंड चेस्ट वेजोकंस्ट्रिक्शन की वजह से. कोरोनरीज डैमेज होंगी तो सेरोटोनिन वेजोकंस्ट्रिक्टर के तौर पे एक्ट करेगा. हार्ट की वेजोकंस्ट्रिक्शन कैन बी डेंजरस बिकॉज कोरोनरी वेजोस्पैज्म कैन बी अ रिस्क फैक्टर फॉर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. Other than that, there is paresthesias, there is heat intolerance, there is dizziness, bradycardia. There might be severe cases में seizures have been reported, but very, very, very rare.
or there can be hypersensitivity reactions, again very rare. There are certain conditions जहाँ पे आप ट्रिप्टन्स नहीं देंगे. इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है, देर इज़ एब्सोलूट गारंटी कि उसकी कोरोनरीज डैमेज है, वी नो दैट. ठीक है. हाइपरटेंशन के पेशेंट है, वी शुड नॉट बी टेकिंग द रिस्क. एपिलेप्सी का पेशेंट है, वी शुड नॉट बी टेकिंग द रिस्क. Hepatic and renal impairment, because we have to give high doses at frequent intervals because of the low bioavailability and the short half life. तो फिर renal damage और hepatic damage भी हो सकता है उसकी वजह से. Pregnancy में they are not indicated at all. एक बहुत important बात है कि somatriptan and ergotamine should not be administered within 24 hours of each other. Now coming to think of it कि हम क्यों देंगे, अब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. एक ये हो सकती है कि लेट्स से अ डॉक्टर हु इज़ लैकिंग नॉलेज कि इनका आपस का ड्रग इंटरैक्शन है, तो वो सिवियरिटी ऑफ अटैक को देखते हुए अर्गर्ट्स और सोमाट्रिप्टन इकट्ठे दे दे. वेरी डेंजरस बिकॉज दिस विल कॉज सिवियर वेसोकंस्ट्रिक्शन, इट कैन कॉज एंड आर्टरी डैमेज, इट कैन कॉज ऑक्यूलर डैमेज बिकॉज हमारी जो ऑफ्थेल्मिक आर्टरीज हैं वो एंड आर्टरीज होती हैं. डिजिटल डैमेज हो सकता है, इस्कीमिया, गैंग्रीन्स हो सकते हैं, सिवियर कोरोनरी वेसोस्पैज्म हो सकता है. सो दिस इज़ एक्सट्रीमली डेंजरस कि अगर आप इन दोनों को को एडमिनिस्टर करें. नेवर. उसके अलावा अर्गर्ट्स क्यों दिए जा सकते हैं? अर्गर्ट्स की अपनी कुछ 2-3 ऑब्सोलीट इंडिकेशंस थी, बट लेट्स से कहीं पे अगर दिए जा रहे हैं पोस्टपार्टम हेमरेज के पेशेंट में, पेशेंट ऑलरेडी पहले से सोमाट्रिप्टन लेती हो, लेट्स से बहुत रेयर, आई वुड से दीज आर रेयर सिनारियोज, बट लेट्स प्रिज्यूम कि क्यों एक बंदा एर्गोटामीन और सोमाट्रिप्टन इकट्ठा लेगा. ठीक है. अ पेशेंट माइट बी हैविंग अ ट्यूमर, अ पिट्यूटरी ट्यूमर, वो हो सकता है ब्रोमोक्रिप्टीन ले रहा हो. ठीक है. तो ब्रोमोक्रिप्टीन ऑल्सो इज ऑल्सो एन अर्गर डेरिवेटिव. हो सकता है वो कोई पार्किंसंस की ऐसी ड्रग ले रहा हो. पार्किंसंस में भी कुछ ड्रग्स हैं विच आर अर्गर डेरिवेटिव्स. एनी अर्गर डेरिवेटिव will have an interaction with the somatriptan, so we have to keep that in mind. These are rare possibilities, but we have to keep that in mind while prescribing somatriptan to any patient. लिपिनकॉट बहुत अच्छा ये एक टेबल देता है जो बड़े नाइसली समराइज कर देता है ड्रग ट्रीटमेंट ऑफ मिग्रेन को. इफ़ यू सी एट द टाइमलाइन में आप देखें, देयर इज एन एसिम्प्टोमेटिक फेज. एसिम्प्टोमेटिक फेज वो है जब उसको कोई अटैक नहीं है. देन देयर इज द स्टार्ट ऑफ एन अटैक. स्टार्ट ऑफ द अटैक पे देयर कैन बी अ प्रोड्रोमल फेज. प्रोड्रोमल फेज वो है जो ऑरा है, इट मे बी देयर, इट मे नॉट बी देयर. एंड देन देयर इज द हेडेक फेज जो एक्चुअल अटैक है, जो सुवेयर हेडेक होती है. नाउ लुकिंग एट दी ड्रग्स, देर आर ड्रग्स दैट आर यूज्ड टू ट्रीट द एक्यूट अटैक. उसमें हमारे पास ट्रिप्टन्स हैं, हमारे पास अर्गर्ट है, और हमारे पास एनाल्जेसिक्स, पेन किलर्स, एनसेड्स और दी ओपियोइड एनाल्जेसिक्स इन केस ऑफ सिवियरिटी. ये एक्यूट अटैक को अबॉर्ट करने के लिए. देन देर आर सर्टन एजेंट्स दैट आर यूज्ड इन प्रोफाइलेक्सिस. मिग्रेन का प्रोफाइलेक्सिस आई वुड से equally, or I would say more important than aborting the acute attack. Acute attack को तो obviously we have to abort. There is no other option. We do not want the patient to go through that agony again and again and again. So उसके लिए हमारा रोल आ जाता है prophylactic drugs का. Now when we go for prophylaxis of migraine? अगर एक patient है उसको more than 2 times a month अटैक हो रहा है, उसकी हेडेक जो है उसके साथ कोई न्यूरोलॉजिकल साइंस हैं, हो सकता है उसको सीजर स्टार्ट हो जाते हैं, हो सकता है उसको सुवेयर इनकेपेसिटेशन हो विच लिमिट्स हिज डेली वर्क एक्टिविटीज़. वो जॉब पे नहीं जा सक रहा या जा सक रही है, वो घर के काम नहीं कर सक रहे हैं. ऑल्सो अगर पेशेंट जो है वो उसकी एनाल्जेसिक्स के साथ जो है वो लेता भी है अटैक को लेने के लिए, लेकिन वो रिलीफ नहीं होते, तो बार बार ओपियोइड एनाल्जेसिक्स देना भी इट्स नॉट फ्री ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स. हम उन पेशेंट्स को प्रोफाइलेक्सिस एडवाइस करते हैं, एंड द प्रोफाइलेक्सिस हैज़ टू कंटिन्यू फॉर एटलीस्ट 6 months. Remember this as doctors and clinicians. मिग्रेन का अटैक कभी भी सबसाइड नहीं करेगा जब तक कि आप उसका रिस्क फैक्टर एलिमिनेट नहीं करेंगे. वी डू नॉट नो द कॉज. हम उस एटियोलॉजी को रूट से लेके वी कैन नॉट टेक इट आउट. वट वी कैन डू इज़ वी कैन वर्क ऑन द रिस्क फैक्टर्स. लेट्स से कि एक फीमेल टीचर है, वो रात को लेट सो रही है, उसका वर्कलोड ज़्यादा है, तो फिर इनके साथ आप उसको जितना मर्जी ड्रग ट्रीटमेंट देते रहेंगे, अटैक सबसाइड नहीं होगा. यू हैव टू एलिमिनेट द रिस्क फैक्टर्स. यू हैव टू मेक श्योर दैट द पेशेंट हैज़ अ रेगुलर स्लीप रूटीन, पेशेंट हैज़ रेगुलर ईटिंग हैबिट्स, अवॉइड्स all the factors which can possibly trigger the attack of migraine. The patient might require counseling. The patient might require additional medications for the stress or anxiety or depression that the patient is experiencing. Only then the medication is going to work and the attacks are going to subside. Drugs for prophylaxis, beta blockers,
जिसमें propranolol, timolol, metoprolol, altenolol have been commonly prescribed. Tricyclic antidepressants like amitriptyline have been advised. एंटीकन्वल्सेंट्स का इसमें अब रोल आ रहा है वैल्प्रोइक एसिड का, टोपिरामेट का. वाई? बिकॉज वो जो न्यूरोजेनिक थ्योरी है जो कहती है कि कोई ट्रिगर ऑफ इम्पल्सेस होती है जिसकी वजह से अटैक स्टिमुलेट होता है. इट इज़ बीन सीन कि वैल्प्रोइक एसिड प्रोफाइलेक्टिकली अटैक के फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज कर देती है. देन देयर कैन बी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, rapamyl and flunarizine. Now flunarizine is a specific cerebroselective calcium channel blocker जिसका रोल माइग्रेन में बहुत पॉजिटिव देखा जा रहा है. क्लोनिडीन हैज़ ऑल्सो बीन प्रपोज फॉर दिस फंक्शन. ये सब वो ड्रग्स हैं जिनको प्रोफाइलैक्टिकली दिया जा सकता है to prevent the occurrence of an attack. This was all about migraine, the drugs that are used for acute treatment as well as the drugs that are used for prophylaxis. If you did find it helpful, please like it and subscribe and share. Thank you.